Okay. So namaste and welcome to Vikalp Varta. This is our 19th Vikalp Varta. One of the interesting ones, I would say. My name is Juhi and I am a volunteer with Vikalp Varta and Vikalp Sangam. Before we go into giving you an introduction of the group that we have today, a very interesting young women's group that we have today, I'd like to just for people who are new to Vikalp Varta and Vikalp Sangam, I'd like to give a short introduction of how this whole idea of these dialogues on alternatives for India began. And it's an initiative of Vikalp Sangam, which is basically a platform or a collective of organizations that are working with alternatives across India in various fields which are related to education, policy, governance, ecology, um, economics, etc., on a holistic level. Our current group also utilizes a lot of learnings from what Vikalp Sangam has been doing for many years, and utilizing a lot of the learnings to do what they are doing today, which we'll get to know. Vikalp Sangam also was conceptualized to be like Sangam means confluence. So a space where people working in alternatives come together, share ideas, share their stories, and also create spaces of learning and moving forward to be able to support each other and grow in a format where we're looking at a more transformation-based approach rather than just a development-based approach. So when Vikalp Sangam works on themes, it also has it works region-wise, and we've done a number of Vikalp Sangams across India on themes as well as regions, and have worked very well to bring people who probably work in the grassroots and think that they're working in silos to find similar thoughts, similar movements, similar ideas coming together to build a larger format of framework and network for India. When COVID happened and the lockdown happened, obviously the Vikalp Sangams, the physical ones that were planned could not be done, but we wanted these dialogues to continue. And that's how the Varta, which we are all a part of today, came into a formation and an initiative, because we wanted that whatever it is, the dialogue should go on. And today more than ever, because we are all further isolated because of this pandemic, and we need to create a format of a continuation of sharing and learning. And it's also having this new format of technology come into our space of learning and meeting. So to also utilize it to do that, whereas we do hope that we can start having our physical sangams soon. So the number of physical sangams that have happened have also generated many stories that we feel needed to be documented and shared across. So there is the Vikalp Sangam website, which shares these stories under various themes and issues, which is, I think, a collection of nearly 1,000 odd stories, which varied people contribute and write across organizations, individuals, and can be accessed by all wherever you're from. Coming to our Varta today, Chinhari, the Young India, and absolutely when I got to know about them, it was very exciting, even though it's not very related to what I do, but I was like, no, I want to know these people, and I'd be happy to host this Varta, because it's a group of women, girls, young girls, apparently aged 9. The youngest member of this collective is 9 years old, and the oldest is 28, which is beautiful. And they call themselves a social transformation initiative, which is learning from. So that's very the key, learning from sustainable ways of living.
they're not creating or they are not trying to work on sustainable ways of living, but learning from sustainable ways of living, and finding alternatives of work in the spaces that they are. They are a group that is based out of currently Dhamtari, which is a village in the which is a district in Chhattisgarh. And here, what they have actually begun in 2016 was working on the issue of water scarcity, which was raised by the women of that region. And hence, it became one of their first premise for them to work with, and we'll know more about it. And moving forward, and understanding from the women of the region, they started working towards looking at health and nutrition. And on a larger basis, what I've read about them, they want to use forms of so-called ecofeminism, which I'm very new to, so I'd like them to also tell us a little bit about that. And what eco-sensitive practice. So it's both about these two different formats, looking at agroforestry, looking at finding ground-based solutions with indigenous worldviews, indigenous knowledge being their main basis of work. So quite interesting, exciting, and I think one of the youngest groups we've had at the Varta. आप सबसे हमारे एकदम युवा ग्रुप हो जो इस वार्ता पे आए हो, तो बहुत स्पेशल हो हमारे लिए. We will have this dialogue in Hindi and in English. Swarnima, who's one of their main leads, will help us translate, or I'm there. There may be some who may talk in the local language there, which once again Swarnima will translate for us. But welcome, आप सबको स्वागत, नमस्ते. Thank you so much. थैंक यू सो मच कि आपने आपका इतना वक्त दिया. स्वर्णिमा बता रही थी कि आप लोग बहुत बिजी हो आजकल, तो हमें पता करना होगा कि आप लोग क्या क्या काम कर रहे हो. एंड वीव गॉट apart from Swarnima, Hema, Pooja, Keshwati and Lalita with us, and many more. They'll all introduce themselves and tell us what they do for the collective. And yeah, over to you, Swarnima. Really excited to listen to more. सो थैंक यू जूही और सभी को नमस्ते. हम लोग एक बार वी विल ऑल इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, जस्ट टेल आवर नेम्स. हम सभी चिन्हारी के मेंबर्स ही हैं यहाँ पर. तो मेरा नाम है स्वर्णिमा कृति, और मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से रिलेटेड हूँ, और सेंटर फॉर डेवलपमेंट प्रैक्टिस अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली. और मैं यहाँ 2016 में आई थी, और फिर ये काम मैंने शुरू किया इनके साथ मिलकर के. नमस्ते, मेरा नाम ललिता सूर्यवंशी है. मैं ग्राम लोकाल की हूँ, छत्तीसगढ़ धमतरी डिस्ट्रिक्ट में ग्राम लोकाल की हूँ, और मैं चिन्हारी की सदस्य हूँ. नमस्ते, मेरा नाम केशवती नेताम है. मैं चिन्हारी की सदस्य हूँ और ग्राम लोकाल की रहने वाली हूँ. नमस्ते, मेरा नाम उमेश है. मैं चिन्हारी की सदस्य हूँ. नमस्ते, मेरा नाम कविता यादव है. मैं चिन्हारी की मेंबर हूँ. नमस्ते, मेरा नाम पूजा यादव, मैं ग्राम माधवपुटी में रहती हूँ और चिन्हारी की मेंबर. नमस्ते, मेरा नाम हेमा ध्रुव है. मैं ग्राम माधवपुटी की हूँ और चिन्हारी के सदस्य हूँ. तो यहीं से हम ये बताना चाहेंगे कि हम क्या काम करते हैं और कैसे हम लोग मिले और ये सब को लेकर के. तो चिन्हारी है क्या एक्चुअली? तो चिन्हारी द यंग इंडिया एक इनिशिएटिव है जो विच वर्क्स फॉर सेल्फ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. हम सेंटर फॉर डेवलपमेंट प्रैक्टिस अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के माध्यम से यहाँ पर काम कर रहे हैं. ये कलेक्टिव है यंग विमेन का, जिसमें 9 से 28 साल के बीच की लड़कियां हैं. हम इस उम्र से छोटी लड़कियां भी हैं जो आती हैं, हमसे देखती हैं. आई थिंक इवेंचुअली दे विल आल्सो जॉइन द ग्रुप, तो दैट इज गोइंग टू हैपन. एंड हम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में काम कर रहे हैं, और ये काम 2016 में शुरू हुआ था. हमारे कई काम हैं, कई काम से हम जुड़े हुए हैं, बट एक चीज जो हमें लगता है, जो हमारा कोर है, जिसको हम आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं, वो ये है कि दैट वी क्रिएट एंड मेंटेन कलेक्टिव्स. और यहाँ पर नेचर ऑफ दीज कलेक्टिव्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज
our aim, our hope is to co-work, is to work with communities, and not on communities or something like that, but हम सब कोई साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, और हम एक बदले हुए कल के लिए काम करना की तरफ काम करना चाहते हैं, towards a transformed future, where we want कि हम एक दूसरे की बात सुन सकें, कि हम एक दूसरे से एक तरह का जुड़ाव रख सकें। ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम शेयर्ड प्रॉब्लम्स पे पहुंचना चाहते हैं और शेयर्ड सॉल्यूशंस पे पहुंचना चाहते हैं। तो हम हमारे लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन मॉडल नहीं है, हमारे पास कोई टारगेट अचीवमेंट्स नहीं है। हम जो हमारे बीच की बातें होती हैं, जो हमारे बीच का चर्चा होता है, हमारी प्रॉब्लम्स वहीं से निकलते हैं, और फिर हम उसके साथ में हमारी लिमिटेशंस क्या है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, उनको ध्यान में रखते हुए हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं इन चीजों को लेकर के सोचते हैं। ऑल्सो ये जुड़ाव हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है इट हैज बीन अ व्हीकल ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अस, कि हमारे स्वयं में उसको लेकर के उसकी वजह से इनके साथ रिश्ता बना करके, एक दूसरे से रिश्ता बना करके हमारे अंदर एक स्वयं का बदलाव हुआ है। मैं दीदी की बातों में और कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कि चिन्हारी के अनुभव से स्वयं में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जब हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ बैठकर काम करते हैं, और जैसा उनके साथ हमारा तालमेल बढ़ता है, वैसे वैसे उनकी सोच और हमारी सोच मिलती है। या चाहे वो सोचे या हम सोचे, हम उनसे भी सीखते हैं, वो हमसे भी सीखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी व्यक्तित्व को देखकर या उनकी आदतों को देखकर अपने लाइफ में या अपने जीवन में उसको ढालना चाहते हैं या वो बदलाव लाना चाहते हैं। तो इसके साथ मैं अपने स्कूल की कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मैं जब स्कूल में थी तो मेरे सारे टीचर्स और फ्रेंड्स भी बोलते थे कि पढ़ाई में इतनी अच्छी है, फिर अपनी बात क्यों नहीं रख पाती, मतलब इतना क्यों डरती है, खुलकर कहीं भी बोल नहीं पाती। तो फिर मैं सोची कि हाँ ये तो है। फिर मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश भी करी, आत्मविश्वास लाने की कोशिश करी, पर नहीं हुआ। इसी बीच मेरी मुलाकात चिन्हारी से हुई। चिन्हारी में हम ऐसा माहौल बनाते हैं, मुझे ऐसा माहौल मिला जिसमें हम अपनी बात खुलकर रख सके, बिना डरे बिना झिझके अपने बात को बोल सके। चिन्हारी से जुड़ने के बाद मुझे समझ आया कि जो मैं अपनी बात नहीं रख पा रही थी, डर रही थी, उसका कारण ये भी है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरे बोलने से उनको गलत तो ना लगे, ये सब मन में आया। इसके साथ मैं कोशिश करी कि मुझे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, और यही कोशिश रही है कि मैं अपने आत्मविश्वास से अपने डर को दूर करके अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। और मुझे चिन्हारी से यही एक नई सोच और एक नई उम्मीद मिली है। और इसमें मेरी हेल्प स्वर्णिमा दीदी और रिमी दीदी, विजेता दीदी की है, और अनूप सर भी जो मोटिवेट करते हैं। लवली, बहुत अच्छा। जैसे कविता दीदी कहा थे कि हमारे चिन्हारी में ऐसे माहौल बनाना चाहता जहाँ हम एक दूसरे की बात ला समझ सकन, अपन बात ला रख सकन और दूसरा भी समझा सकन। एक अलावा हमारा चिन्हारी में हमारा देखभाल करे कोशिश करता है, एक दूसरा से प्यार से रहे कोशिश करता है। जैसे कि हमारे गांव में पिछले साल मड़ई होती से, तो हमारे चिन्हारी ग्रुप के 4 लड़की कामेश, मोनिका, गुंजा और नेहा, चारों जन ना देवता हरी से, मतलब देवता चक्री से। तो हमारे ना देवता चढ़ते ना, तब सब जन ना, मतलब देवता चढ़ते ना, तब पूरा ना वो ना अपन शरीर की आपात पूरा खो दे रहते, होगा दिमाग से भी होगा नियंत्रण पूरा खो चुके रहते। तो हमारा ना बहुत चोट लगती। तो हमारे एक घटना ना हमारे मतलब लड़की में चलते होते, इसका एक घटना हमारे गाँव पहली बार ही से, तो हमारे ऊपर ज्यादा नियंत्रण करते हैं। तो हम मीटिंग में मतलब सोचते रहे कि मन कैसे हुई, मतलब कैसे हुई, दिमाग का जो पड़ी हुई, क्योंकि हमारे सब लोग बात करते हैं और मन मीटिंग में नहीं आते, तो हम सोचते हैं कि मन कैसे हो गए, मतलब ठीक तो है कि नहीं। तो जब हम मीटिंग में इसना तब पूछे कि तुम ठीक होगा, तो हाँ मन बताइए कि हम बने हैं दीदी। हाँ, तो हम एक अलावा भी हम ना ईर्ष्या, दुख और जलाना लेके भी काम मतलब समझे कोशिश करता है, काबर के सब हमारे गाँव हो चुकी। हमारे गाँव ना मतलब जमीन विवाद को लेके हमारे गाँव में 2 भाग में बढ़ गई। जिसे मतलब जब 2 भाग में बढ़ गई, मतलब लड़की मन भी मतलब अलग अलग घर से रही, तो अलग अलग हो गई से, मतलब अलग अलग तो नहीं पर अलग अलग पारक रही से, तो अलग अलग हो गई से। तो हमारा ना मीटिंग करे पर बहुत दिक्कत होती से।
इसकी का मसन बात मत करे करो, घर जाए मत करो, मतलब आना जाना मना कर दे से। तो हमन हमर घर मन में बात करें कि तुम अनिसन काबर का तू हमला मतलब हम नाचिन गाँव है तो सब जन एकजुट रह के मतलब काम करथन, काम करे बर अच्छा लगती, सब जन साथ में रहथन ता के फिर घर के मन समझिए हमला भेजिस कि हाँ तुम जा सकते हो कि तो हमन चिन्हारी में एक दिन मीटिंग करें। तो हम मतलब मीटिंग में बात करें कि तुम मतलब छोड़ दे सभी, तो मतलब का परेशानी भी तुम आए जब मना करत रही नहीं करत रही से ऐसे कि सब लोग बात करें। हाँ वो मन बताइस कि हाँ हम मतलब ऐसी शिकायत मतलब आ जाए मना करत इसके की से हम सब एक बात से समझी की कोशिश करे हैं। और मतलब सब जन अब सोचे कि हमन नहीं छोड़ा मीटिंग करे पर हम सब जन मीटिंग करबो ठीक है। तो ये बात ला हम समझे की कोशिश करें, अगर परेशानी आ जाए तो हम वो समझे की कोशिश करें। Swarnima, will you translate? ट्रांसलेट, हाँ नहीं आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे थोड़ा स्वर्णिमा? Okay, yes, I'll do that. So, what Keshwati wanted to say is that we work through emotions like love, friendship, care, and she was trying to say that there is an incident that happened in the village, that there were 4 girls in our group who during the Madai season. So Madai is a festival, is a village festival that happens, and during that the 4 girls had taken out the gods of their household, and they were apparently believed to be possessed. And during that phase, what happens is they say they tend to lose control of their bodies, of what they're saying, etc. And therefore they were hurt, they danced and they fell down, they were hurt at different places, and they were very concerned because this was also the first time when young women or women in the village had been possessed like that. So they're very concerned. They went to their places. They wanted to know if they're okay or not. They constantly kept discussing it. If they're going to be all right, what is going to be after this? Because will there be any remainders with them, or what will happen? And then they met them. They came to the meeting. Everybody spoke to them if they're okay. And therefore they were saying that we have cultivated this in us, that we want to take care of each other, we want to listen to what is the other person going through. And similarly they're saying that it's not only love, care, and friendship, it's things like these, but we also do not ignore things like greed, jealousy, sadness. We also try to look after that. We also try to understand what are these emotions and what are they going to do to our group. So and therefore she gave an example that the village that Keshwati lives in had got divided into 2 parts because of a land problem, and approximately 25-30 households of the village had been outcasted. They had been ostracized from the village meetings, etc., all the social events. And therefore the girls had also, because there were members of Chinhari in these households, and they had been outcasted, and the household members, the older members, they would constantly say that you don't go for the meetings, you don't have to go for the meetings, you are outside the social events of the village. And they were also scared actually, but then they did come for the meetings, and we spoke about it there, that can be what is this happening and how are the other girls feeling, is the similar thing being said to them, are they facing similar constraints? And then they went back home and they said that we want to go to these meetings. And there's something I would want to add actually, that the village had actually got so divided that they didn't want to see each other's faces. But somehow I would say it is through them. They kept meeting each other, they kept talking, they went out, they took the women out with them from both the parties. And actually, there was less animosity because they were constantly meeting. So, this is what Keshwati was saying. Also, to add to Keshwati's point, कि हम जब भी कोई परेशानी आती है हमारे ग्रुप में या कुछ भी ऐसा होता है, तो हम सिर्फ ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश या उसका एक रास्ता को सोचने की कोशिश करते ही हैं हम लोग, लेकिन साथ साथ हम उस प्रॉब्लम की गहराई पर भी सोचने की कोशिश करते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों हमें हो रही है, या क्या वो प्रॉब्लम यंग वीमेन को हो रही है, या what part of us is it affecting. तो हम वो भी थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं. Lovely. Juhi, sorry, Yeah. can I
Swarnima, just interrupt. Do you want to ask if people need translation from Hindi? Because if so, some of what Swarnima is saying will also have to be translated. Translated, yeah. If not, then only what the local language can be translated. But अगर लोगों को चाहिए, so maybe so yeah, so this is just a question to the group that's listening in. Just type in the chat box, how many of you need translation from Hindi to English? Just say yes if you need. English translation is not okay. I have one person who says not needed. Yeah, I think so. Ashish, the group that we have right now, even I feel that most people can understand Hindi and English. Fine. So then only when they speak in local language. Local language, yeah. And it's nice, Swarnima, ki aap bhi thoda Hindi, English, yes, mix both, so it should be perfect. Only local language will have to be translated. Not a problem. Thank you so much. Carry on, please. चिन्हारी के काम 2000 आपका नाम? मेरा नाम हिमा ध्रुव है। नमस्ते। हाँ। चिन्हारी के काम 2016 में ग्राम मार्दापुटी में किए थे और पानी की समस्या महिलाओं के साथ मीटिंग करके उनसे बातचीत करके उनकी परेशानियों के माध्यम से इस समस्या पता चला है और फिर चिन्हारी के लड़कियों के साथ भी बातचीत करके यह मालूम चला है कि गांव में समस्या पानी के कमी के ऊपर नहीं है बल्कि यह है समस्या कि घर में पानी लाता कौन है। इसके ऊपर हम लोगों ने गांव में मीटिंग भी किया था और इसमें महिला पुरुष और बुजुर्ग इन सभी को बुलाए थे और मीटिंग किए थे। इसमें हम लोगों ने पूछा, मतलब हम लोगों ने उनसे अपनी परेशानी उनके सामने रखी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी बातों पर नजरअंदाज कर दिया और फिर हम लोगों ने ऐसी कोशिश करते रहे लेकिन हार नहीं माना हम लोगों ने। So like Hema said कि हमने मार्दापुटी में काम शुरू किया और हम महिलाओं के साथ में हमें ये पता चला कि पानी का एक प्रॉब्लम है कुछ हमारे गांव में। तो we started talking about it, उसको हम आगे लेकर के गए और हम और लोगों के साथ में चर्चा करने लगे। तो जब हमने लड़कियों के साथ में चर्चा करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये बार बार कह रहे थे कि हमें बहुत काम करना पड़ता है, हमें पानी लाना पड़ता है, वो लाना बहुत मुश्किल होता है। 4 बार दिन में करीब 3 घंटे लग जाते हैं पानी लाना, लेकर जाना, शाम को भरना, सुबह भरना। तो ये मुझे धीरे धीरे हम लोगों को अपने डिस्कशंस में समझ में आने लगा कि ये पानी की कमी का प्रॉब्लम नहीं है, ये कौन पानी ला रहा है उस चीज का प्रॉब्लम है। जिस तरह से हमारे जो हमने गांव में मीटिंग की थी उसमें भी जिस तरीके से मतलब और लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं पानी का प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी हमें क्लियर होता गया कि पानी ना होने का प्रॉब्लम नहीं है। जिसे पानी मिल पा रहा है वो खुश है और जिसको लाना पड़ रहा है वो खुश नहीं है इस बात से। इसके साथ साथ हमें एक रियलाइजेशन ये भी हुआ कि जब महिलाओं से हम ये बात कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है और वो लोग ये बात कॉन्स्टेंटली बोल रहे थे कि पानी की समस्या है, पानी की समस्या है। तो ये पानी की समस्या बिकॉज आई थिंक द वुमेन वर बाउंड इन द नैरेटिव ऑफ द डेवलपमेंट डिस्कोर्स ऑफ द बिजली सड़क पानी नैरेटिव। देयरफॉर वो उसी से छन के जब बाहर निकल रहा था तो वो नल जल योजना लगवाएंगे, हम पानी लाएंगे, तो इट बिकेम लाइक दैट। एंड व्हेन जब हम लड़कियों के साथ ये डिस्कशन करने लगे तो इट translated into something very different from not only being an infrastructural problem, it also became a gender problem. और इससे हमें ये भी समझ में आया कि क्यों इन लड़कियों की आवाज जरूरी है, because they were putting out a very noble point जो शायद otherwise was a blind spot in other narratives. Therefore we thought it is very important to put this voice out, to look at the way they look at the world. And
इसी चीज को हम आगे लेकर के गए और हमने गांव में लड़कों के साथ बात करनी शुरू की कि अगर हम कि हमारे घर में कैसे काम होता है, क्या होता है, थिंग्स लाइक दोज. Also this was a turn for us to involve the young men in the village. हमारा एक तरीका हो सकता था कि हम सभी जागरूक हो जाए इस बात को लेकर के कि हमारा लेबर का प्रॉब्लम है, हमको जा करके लाना पड़ता है. बट हम उस अवेयरनेस और राइट्स मॉडल से थोड़ा सा आगे जाना चाहते थे. और अस हमारे लिए चिन्हारी दो तरह से दुनिया को देख रहा था. एक तरीका दुनिया को समझने का ये था कि हम ये समझते कि दुनिया दो या दो से ज्यादा जेंडर्स में बटा हुआ है. दूसरा है कि क्या हम एक जेंडर्ड दुनिया बना सकते हैं. तो एक तरीका था कि हम ये कहते कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं हल चला, लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां बहुत यहाँ पर हल नहीं चलाती, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कि हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम हल चलाएं सभी. बट उसके साथ साथ हम ये भी चाहते थे कि हम हल चलाने के बाद वहां कौन सा बीज डाल रहे हैं. क्या हम वो बीज डाल रहे हैं जो उस धरती, उस जमीन को हानि पहुंचा रहा है, उस एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा रहा है. सो आवर एम वाज आल्सो टू क्रिएट अ जेंडर्ड वर्ल्ड, एंड दिस इज हाउ वी केप्ट द कॉन्वर्सेशन ऑन. हम लड़कों के साथ ये बातें करने लगे, उनको भी इंक्लूड करने लगे, बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड देम इनटू दिस कॉन्वर्सेशन आल्सो, बिकॉज we didn't want to create a world that was where they were in the marginal section. So we wanted them to be a part of it. And धीरे धीरे the girls and the young men, the young women, young men, they together wrote a play. और अपनी जिंदगी से, अपने एक्सपीरियंसेस से इन लोगों ने एक प्ले लिखा और उसको परफॉर्म भी किया जा करके, जिनमें से कुछ लोगों को फर्क पड़ा, कुछ लोगों को समझ में आया, और इनका कहना है कि कुछ लोगों के अंदर बदलाव भी आया शायद. इसी तरह से हमने 2018 में एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अराउंड एक चर्चा शुरू किया, और हम एक सीड चेंज की आइडिया को लेकर के सोचना हमने शुरू किया. Now we wanted to move towards eco-sensitive practices of living, and this was also inspired by the Goan way of life. But हम ये भी देख रहे थे कि इन Goan way of life से इस क्षेत्र में लोगों का जो साथ है वो छूटता जा रहा है. That was perhaps because they were getting caught in the profit maximization, overproduction के narrative में फंस रहे थे हम लोग यहाँ पर सभी लोग. और इसके वजह से हम देख रहे थे कि the larger जो इफेक्ट था वो सबसे ज्यादा शायद ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में ही आ रहा था, क्योंकि जो लैंड है वो खराब होता जा रहा था. And the source here is the land. अब जब वो लैंड खराब होता जा रहा है तो there is a movement towards migration, और वो माइग्रेशन ज्यादातर की इनफॉर्मल सेक्टर में हो रहा था. तो हम, and then again there was this GM seed that was being introduced. तो पिछले 25 साल से, 20-25 साल से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि फार्मर को और ज्यादा डिपेंडेंट बनाते जा रहा है. So the on the market and on the state. So the farmer is constantly becoming like a laborer on his own land, क्योंकि उसका सीड बदल गया है, उसका नॉलेज नहीं है उसके पास, तो उसको बार बार जाकर के पूछना पड़ता है, पता करना पड़ता है, ये बीमारी हो गई अब मैं क्या करूं, ये बीमारी हो गई या ये प्रॉब्लम हो गई अब मैं क्या करूं. तो इन चीजों को सोचते हुए we wanted to somehow perhaps make some effort to reverse this, to do something about it. And therefore we started looking out for non-extractive human nature relationships. और हमें एक जगह से ये पता था कि perhaps there is a part of it in वनवासी life worlds, but चूंकि अब वो छूटता जा रहा है, वो रिश्ता छूटता जा रहा है, तो हम उसके बारे में we wanted to bring it to the villages, to the people. और हम ये भी साथ में समझ रहे थे कि जो चीज पास्ट में है हम उसके पास सीधे सीधे नहीं पहुंच सकते हैं. We will have to change our practices to reach there. We will have to take up these kinds of eco-sensitive, sustainable practices to reach the past. Just because it has been in our past, वो नहीं, हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे. So we'll have to bring the past and the future together to reach there. Therefore, like I'll just give an example कि यहाँ पर हम यहाँ पर नवाखानी करके एक फेस्टिवल मनाते हैं, which is about जो हार्वेस्टेड राइस होता है अभी का,
उसको पूजा करके उसको खाया जाता है. Over the time, what has happened is that people have started eating the new rice that is there, that is hybrid high yielding. So what we also wanted, and we got into discussions with the older people in the village also, what we are doing is that we are managing to take the festivals on every year, but our practices are changing every year. We are not eating indigenous seeds, but we are eating the hybrid seeds, and we are also offering this to our gods. So we are ruining our land, and then we are offering the same thing to our gods. So therefore, we thought that there has to be a movement from here, from this space. And then similarly in 2020 हम लोग एक लैक कल्टिवेशन के बारे में भी सोचने लगे, और उसके पहले हम 2018 में हमने वेजिटेबल मतलब इंडिजिनस वेजिटेबल सीड्स को भी लेकर के हम काम करना शुरू कर रहे थे, और हमने भी ट्राइड टू मेक दैट चेंज ऑल्सो. तो उमेश हमारी सबसे छोटी, यहाँ पर अभी सबसे छोटी मेंबर है, तो she wanted to talk about the vegetable cultivation that we were doing. थोड़ा आगे आ जाओ. हम सब जन धमतरी जा रहे हैं. हमारे जांच थोड़ा जोर से बोलो, जोर से. हम सब जन धमतरी जा रहे हैं. हमारे जांच करे से कुछ जन मतलब कुछ कमी रही से, तो हमन सोचे कि ये देसी बीज के खेती करबो के केन, तो हमन बाड़ी खोजे, स्कूल के बाड़ी मांगे हैं, सर से पूछे हैं, और बाड़ी साफ सफाई करे हैं, काटा माला हटाए हैं, ढूंढे हैं, और बेड बना है. बेड बनाने के बाद एक गोबर खाद डाले हैं, बीज लगा है, बीज लगात कुछ गठियात रहे तो जल्दी लग गए थे, लगा डाल था. आप सब ये सब अकेले किए हैं कि कितने लोग थे? अच्छा, ठीक है. और सब जन नहीं, एक ठन बेड में अलग अलग प्रकार के बीज लगा था, जैसे कि भिंडी, चिचुटिया, बरबटी आदि लगा है. सब्जी मन बड़े बड़े हो जाते ता सब जन बनखनी दे जान, और सब जन आरिक पारी पानी डालन, तब मजा आए. डालन और बाड़ी में सब जन आए था, कुछ खेलन, हंसी मजाक करन, मिलजुल के रहन, और काम और पढ़ाई को साथ में मिलकर करन, और काम में भी मस्ती खोज लेते हैं. So I think I'll translate it. I understood, but yeah. Yeah. So what Homesh was saying, the process was such that the girls had come here to Dhamtari at this place that we have as a center, and we got a checkup done for them, and it was hardly 1 or 2 people who didn't have iron issue. So everybody was low on iron, and then we thought, why is this? Why is it that so many people have an iron deficiency? And slowly we started thinking that if we could, so what is it that we can do? Do we want to eat tablets? And they said, no, we can't eat tablets. So we said, okay, let's think about our food. Let's think about what are we eating, because that's what is going inside us. And then they said, okay, let's do one thing. Let's do indigenous vegetables. And through our friends like Ashutosh, who is working in Odisha, and we are also helped by Center for Interdisciplinary Studies, yeah, Basudha in Odisha, Devdulal Bhattacharya ji.
So with their help and their knowledge, we were told that indigenous vegetables have more पोषण तत्व उसमें ज्यादा होता है. So we thought, let's do that. So we found a place. It took us a lot of time to find that place in the village, because initially people thought, oh, these are young women. How will they, use the land and things like that. So we took around 6 months to find a land, and then we had to, we went to the teacher, the primary school teacher. He gave us their land, and the women around helped us a lot. So we are very thankful to them. They helped us. They taught us how to make the land, how to create the land for vegetable cultivation. Bed banana सीखा हमने. Also a lot of other things that people in Vasudha taught us. Agroforestry के principles they taught us कि आप एक family के सब्जियों को साथ में नहीं लगाएंगे, कौन सी सब्जियों को लगाएंगे. So there were tons of things that we were taught, and then we tried to implement it in our body, in the space that we were collectively using and producing things in. And there they would have a lot of fun. They would do sow the vegetables, then they would finish it, then they would go around, have a lot of fun time together. So their meeting time was fun time for them, whatever they do. And what she was also saying, that we also try to learn through these practices. So the soil content क्या है, क्या हम उससे थोड़ा chemistry सीख सकते हैं, हम क्या जिस land पे काम कर रहे हैं उसको नाप सकते हैं अपने पैरों से. So there were these things that we also learned together. So we tried to also bring together education and these hands-on practice forms. So that was there. Also, when we were doing these indigenous vegetables, we also learned about the market mechanics. And हमारा discussion वहाँ पर शुरू हुआ कि what is the market also doing to us? Are we becoming uncritical consumers? तो क्या ऐसा हो रहा है जो चीज हमारे पास है वो हम फिर भी खरीदने जा रहे हैं. हमारे पास बहुत बड़ा जगह है लेकिन हम फिर भी, और उसमें सब्जी नहीं उगाते, हम बाहर बाजार से खरीदने जाते हैं. So there's a kind of fetish that we have with things in the market. तो इस पे हमने डिस्कशन करना शुरू किया और ये सोचना शुरू किया कि क्या हम जो तेल यूज करते हैं वो हम खुद बना सकते हैं, क्या हम जो सब्जी कर रहे हैं वो हम खुद उगा सकते हैं. तो हमने बीज लोगों को बांटना शुरू किया. हमने बीज बढ़ाया और हमने घर घर बीज बांटना शुरू किया कि आप भी करिए. लेट्स मेक इट अ थिंग फॉर द होल विलेज. So that's how we started this work, and it did have a ripple effect eventually. In 2020 we also started with the LAC work. हमने लाख का काम आसपास देखा और उसके बाद हमने उसको लेकर के कुछ अंडरस्टैंडिंग्स थे हमारे, कुछ सवाल थे हमारे जो हमने सोचना शुरू किया. जैसे कि दीदी बोल रही कि हम लोग 2020 में लाख करना शुरू किए. तो चिन्हारी लाख करने से पहले चिन्हारी को पता नहीं था कि लाख होता क्या है, लाख को करते क्या है, लाख मतलब क्या चीज है करके. तो फिर हमारे चिन्हारी की मीटिंग में एक कांग्रेस से भैया आया था, सौरभ करके, जो हम लोग लाख के बारे में बताया. फिर हम लोग गए कांकेर गए, लाख देखे उधर. तो हम लोग सोचे कि लाख कांकेर में क्यों हो रहा है, धमतरी जिले में क्यों नहीं हो रहा है. कांकेर में मतलब लाख, और पता चला कि कांकेर में तो लाख पहले से ही हो रहा है और धमतरी जिले में अगर हो रहा है तो हमें दिख क्यों नहीं रहा है लाख, मतलब होता क्या है करके. ऐसे ही चिन्हारी की मीटिंग में बात की. तो फिर आसपास में बात करने से पता, मतलब आसपास में हमारे गांव के आसपास में बात की तो पता चला कि लाभ तो मतलब बहुत सालों से हो रहा है. और लाभ तो मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों का एक धरोहर है और उसे तो मतलब वो मानते हैं, छत्तीसगढ़ का उत्पाद मानते हैं जो हमारे पूर्वज वर्षों से करते आ रहे हैं. तो मतलब फिर ऐसे ही बात करना शुरू किया कि जब ये वर्षों से करते आ रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य उत्पाद है, तो हम लोग मतलब लाभ अब क्यों नहीं हो रहा है, मतलब हो रहा है तो कांकेर में क्यों हो रहा है, नगरी में क्यों नहीं हो रहा है करके. फिर हम लोग लड़कियां सोचे और पता किए आसपास में कि क्या कारण है कि लाभ हो नहीं रहा है करके. फिर बात के आसपास में बात किए तो पता चला कि लाभ तो जंगल में होता है. तो जंगल में होता है तो सब चाहते हैं लाख निकाल के ला लेते हैं, मतलब ला के बेच देते हैं, मतलब कीड़ा का ध्यान नहीं रखते कि उसमें कीड़ा बच रहा है नहीं बच रहा है, बस लाख लाते हैं निकाल के और बेच देते हैं. तो सारी चिन्हारी की लड़कियां सोची कि जो जंगल का जीव है उसको बचाने के लिए
जो लाख का कीड़ा है उसको बचाने के लिए हम लोग डोकाल में एक छोटा सा फ्रूट फार्म बनाने के लिए, लाख का फ्रूट फार्म बनाने के लिए सोचे और कांकेर से लाख का कीड़ा लेके आए। और अभी हम चिन्हारी की लड़कियां एक छोटे पैमाने में लाख कर रहे हैं। अब जब ज्यादा हो जाएगा तो हम लाख के कीड़े को जंगल में जाके छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जंगल हमारे लिए एक वो है, मतलब उपयोगी है। जंगल से हमें सब कुछ मिलता है, जंगल की वजह से हम जिंदा हैं। जंगल हमारी मातृ शक्ति। हम हमारे आदिवासी, जैसे आदिवासी लोग ना जंगल को एक धरोहर मानते हैं, उसे हम प्राकृतिक शक्ति मानते हैं। जब जंगल हमें इतना कुछ देता है तो हम उनको, उनकी चीज, जैसे लाख एक प्राकृतिक जीव है, लाख एक प्राकृतिक जीव है जिससे इंसान की वजह से वो विलुप्त हो रही है, खत्म हो रही है। तो हम चिन्हारी लाख इसीलिए शुरू किए हैं कि हम उस लाख को जंगल में वापस छोड़ना चाहते हैं, देना चाहते हैं। Wow, very nice. Do you want to just quickly translate a bit, Swarnima? नहीं, actually हिंदी है तो सब समझ गए होंगे, ठीक है? नमस्ते मैम। नमस्ते। पूजा यादव। हेलो पूजा। जैसे कि लल्ली दीदी बता रही थी कि 2020 में वो लोग, मतलब हम सभी लोग लाख का काम चालू किए। उसी साल 2020 में इस लॉकडाउन में कोरोना के कारण हम लोगों को कितनी परेशानी हुई, और कोरोना के चलते लॉकडाउन भी हो, उसमें हम लोगों ने 1.5 साल तक, मतलब 1.5 महीने तक ना हम लोगों ने ना मीटिंग नहीं किया। और इसी बीच हम लोग ना उस टाइम जंगल जाते थे मूंगा बीनने के लिए। तो दीदी लोग और हम सब चिन्हारी के मेंबर हम लोग बात किए कि हम लोग तो जंगल जाते ही हैं और हमारे आसपास कितने पेड़ पौधे जड़ी बूटी ये भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उसके बारे में हम लोग अपने आसपास जो मिले उसके बारे में हम लिखे, उसका उपयोग लिखे। तो हम लोगों ने ये चार्ट बनाया। इस चार्ट पे वाओ, लवली। थोड़ा और पास ले आओ तो और दिखेगा। नाइस। हाँ, ये अलग अलग पत्ते हैं और ये बीज है। ये चार का, महुआ, बेल का, जो चीजें इनको जंगल में मिलती हैं। और ये इनके जो सब्जियां, दाल है यहाँ के, और जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीड्स हैं, उसको इन लोगों ने लगाया हुआ है इसमें। बहुत सुंदर। और इसको कहाँ लेके गए आप फिर? इसको हमने एक्चुअली ये चीजें जो वो लिख रहे हैं, वी टेक इट टू द न्यूज़लेटर, और हम इन सारी बातों को फिर भी we'll also talk about that a little. ठीक है। उसके बाद ना फिर ना थोड़ा कोरोना थोड़ा कम हुआ, मतलब लॉकडाउन थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद दीदी लोग और फिर हम सब लोगों ने सोचा कि गांव में बहुत परेशानियां भी आई, तो लोगों को क्या परेशानी, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, और खेती किसानी में कितना नुकसान हुआ, ये सब हम लोगों ने सोचा। और गांव वालों के साथ ना इंटरव्यू लेने का सोचा। तो हम लोगों ने गांव वालों के साथ इंटरव्यू किया, तो पता चला उनसे ये उत्तर मिला कि वो लोग ना जंगल से बहुत ना आत्मनिर्भर थे। तो इस लॉकडाउन के कारण, इस कोरोना के कारण ना जो वो जंगल से लाते थे उसका ना उनको उचित दाम, उचित मूल्य नहीं मिल पाया। इससे उन्हें परेशानी भी, और खेती किसानी में ये परेशानी हुई कि उन्हें मजदूर नहीं मिला, बनियार नहीं मिल पाया उन लोगों को। फिर उसके बाद ना परेशानी उन्हें नहीं, हम लोगों को भी हुआ। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी परेशानी लिखे। तो हम लोगों ने भी लॉकडाउन में ना अपनी परेशानी लिखी। और बीच हम कोविड के लिए ना पेंटिंग बनाना चालू किया। तो पहले ना पेंटिंग सिर्फ बनाने के लिए बनाते थे पेंटिंग। फिर ना हम लोगों को पेंटिंग में लगाव होने लगा, और पेंटिंग में ध्यान केंद्रित होने लगा, और मन एकदम शांत लगने लगा। और पहले हम लोग दुनिया भर की चीज, नेगेटिव चीज सोचते थे, वो अपना ना सोच के हम लोग क्रिएटिव चीज अपनाने लगे, उसे सोचने लगे हम लोग, और अपने आसपास की परेशानियों को समझने लगे। और जब अपने आसपास की चीजों को समझने लगे, परेशानियों को समझने लगे, तो हम लोग उसे पेंटिंग में दर्शाने लगे। ऐसा लगा कि हम लोग अपने अंदर की अभिव्यक्ति, जो छुपी है अभिव्यक्ति, उसे हम लोग बाहर निकाल के ना उस पेंटिंग में दर्शा रहे हैं। जो महसूस करे, जो मन में, उसे हम पेंटिंग में दर्शाए।
फिर हम लोगों ने सोचा कि पेंटिंग तो इतनी अच्छी बना रहे हैं, तो हमारे आसपास तो कोई ऐसा आर्ट फॉर्म नहीं है जो हम लोगों के जीवन को, जो हमारे लाइफ वर्ड्स को बताता हो, दर्शाता हो। इसलिए हम लोगों को लगा कि क्यों ना हम अपने आसपास एक आर्ट फॉर्म बनाए। इसलिए हम लोगों ने आर्ट फॉर्म बनाने के लिए सोचा, और हम हमारे जीवन के बारे में दर्शाना, और हमारे लड़कियों के जीवन को दर्शाना, वनवासियों की जीवन कैसे जीवन यापन करते हैं, ये सब दर्शाने के लिए हम लोगों ने आर्ट फॉर्म बनाना सोचा। तो हम लोगों ने शुरुआत हाथा से किया। ये Oh, wow. Yeah. यादव समाज जिसे राउत भी कहते हैं, ये लोग घर घर जाके गौशाला में जहाँ गाय बांधते हैं, हाँ, गौशाला में जा जाके ये आकृति बनाते हैं, हाथा देते हैं, उसे हाथा कहते हैं। तो यह मान्यता है, लोगों की यह मान्यता है कि ये लोग घर घर जाके घर में ना सुख समृद्धि और धन धान्य और लक्ष्मी जी का वास हो। यह सब हमारे लाइफ वर्ड्स को दर्शाता है। Beautiful. तो जो भी पूजा बोल रही थी कि हम लोग लिखते हैं और हम लोग अपना अनुभव लिखते हैं, तो हमने 2019 में एक न्यूज़लेटर निकालने का सोचा कि चूंकि हम सब लिखते हैं, पढ़ रहे हैं, और हमारे पास वी हैव द कैपेसिटी टू राइट, सो वी ऑल थॉट कि हम लोग अपना अनुभव लिखें और उसको एक जगह लेकर के आए। दिस वाज आल्सो फॉर आसपास के गांव में लोगों को अनुभव पता चले, वो लोग इस बारे में जाने। ये भी था कि हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन किसी और के माध्यम से ना हो, हमारा रिप्रेजेंटेशन अगर हम खुद अपनी आवाज में कर सके तो वो कैसा रहेगा। दूसरी चीज ऑल्सो वॉज दैट कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहां पर अर्बन, रूरल, एलीट, सबाल्टर्न उसका डायलॉग हो सके कि हम कुछ लिख रहे हैं, उस पर और कोई अगर कुछ बोलना चाहता है, कहना चाहता है, तो हम उस चीज को कैसे उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। So I'll just show the new newsletter that we are publishing today actually. Sure. So I will just show that. Absolutely. This is the newsletter. ये आज शाम तक हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगा। तो ये हम लोग वहां पर भी देख सकते हैं। आई कैन पुट इन अ PDF फॉर्मेट इन द चैट ग्रुप ऑल्सो। तो ये हमारा वी ट्राइड थ्रू दीज, जो जितना भी हम लड़कियों ने यहाँ पर सबने बोला, उसके माध्यम से हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक रिवाइज्ड ट्रांसफॉर्म फ्यूचर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा ग्रुप भी इस तरह से चलता है कि हमारे पास हमारे ग्रुप में कोई लीडर नहीं है, या ऐसा नहीं है कि एक जन ग्रुप चला रहा है। सो वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल ऑफ व्हाट आर वी डूइंग। इफ वी डू समथिंग रॉन्ग, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इफ वी डू समथिंग, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस। इसीलिए हमारे प्रॉब्लम्स भी यहीं से आते हैं, एंड दैट्स हाउ वी होप टू कंटिन्यू टू फंक्शन। So yeah, that's the small story of our collective, and we actually try to become a collective every day, क्योंकि हमारी परेशानी भी आती है, हम स्ट्रगल भी करते हैं, हम टूटते हैं, हम साथ में आते हैं। So we actually every day we don't lose hope, and we keep struggling towards being a collective. Yeah. Lovely, beautiful. Thank you so much, Swarnima. You said you had a short film that you wanted to share with us. Do you want to do that now before we start taking questions? Yes, I will do that. Yeah. I will just share the... So people listening in, if you have questions for anyone in the group, please type it in your chat, and then we will start the Q&A post the film that Swarnima wants to share.
Just No can the problem. screen be seen? Yeah, yeah.
Juji, I'll just take a minute. This Yes, film please go was ahead. made by our friend Arpit, and I think this is an important time where we would like to take some names जिनके बिना शायद न चिन्हारी शुरू होता ना हम यहाँ तक पहुँचते. बिल्कुल. अनुभा सिन्हा, विजेता, अर्पित, प्रतीक, भव्या, गुरप्रीत, आशुतोष, नीरज, इमरान, इनके बिना मैं शायद यहाँ पर हूँ, बट इनके सपोर्ट के बिना हम सब को उतना मोटिवेशन नहीं आता. हम सब यहाँ पर अपना काम छोड़ करके चिन्हारी को साथ में लाने की कोशिश करते हैं. We find a different kind of inspiration together, but without their support, perhaps you wouldn't have been able to reach here. Lovely. थैंक यू सो मच. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सच में बहुत मज़े के साथ आप लोग कर रहे हो जो कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि ये सिर्फ बढ़ते रहे. कुछ सवाल आए हैं चैट बॉक्स में जो हम लेंगे. एक्चुअली एक पहला सवाल, और हो सकता है कि बहुत लोग जो सुन रहे हैं उनके इस दिमाग में भी होगा कि चिन्हारी यानी कि इसका मतलब क्या है और ये कहाँ से आया. हाँ, चिन्हारी ये काम तो हमने 2017 के अराउंड वी स्टार्टेड द ग्रुप, एंड बट इट वाज 2018 में हमने सोचा कि हमें अपने आप को एक नाम देना चाहिए. तो हमने पूछा, एक्चुअली हमारा मीटिंग हुआ, हमने पूछा कि हमारा नाम क्या होना चाहिए, और हम में से बीच में एक लड़की थी मनीता, वो अभी गांव में है, तो उन्होंने हमको बोला कि चिन्हारी होना चाहिए, और हमने पूछा कि अच्छा ठीक है, चिन्हारी इज अ छत्तीसगढ़ी वर्ड जिसका मतलब ये है टू लीव अ मार्क, चिन्ह छोड़ना. अच्छा, ओके. तो इनके लिए और हमारे कुछ और भी नाम थे. हमने अभिव्यक्ति एक नाम सोचा था, चिन्हारी एक नाम सोचा था. तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये एक छत्तीसगढ़ी शब्द होना चाहिए, और ये लीव अ मार्क, चिन्ह छोड़ना, हम जीवन में ये करके जाएंगे. तो वी थॉट लेट्स ये नाम. ब्यूटीफुल. ठीक है, तो अब जो सवाल आए हैं चैट बॉक्स में उसमें से एक, मैं इनका नाम तो नहीं जानती, बट ये पूछ रहे हैं आपसे कि जब आपने ये पानी का जो उदाहरण दिया कि इशू ये नहीं है कि पानी की किल्लत है, पानी कौन ला रहा है, इशू ये है, तो क्या आप सिर्फ महिलाओं से ही बात करते हैं या पुरुषों से भी करते हैं, और क्या फील्ड में पुरुषों या युवाओं का सहयोग मिलता है? तो हम लोग बात तो बिल्कुल जैसे हमने कहा कि हम वी इंक्लूडेड द यंग मैन इन द मीटिंग्स. जैसे कि हमने बड़ी मीटिंग भी की थी जहां पर हमारे जो गांव के बड़े लोग थे, सियान थे, ओल्डर मैन थे, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी. तो इंटरेस्टिंगली जो लड़के थे उनसे हमें काफी सहयोग मिला, बट जो ओल्डर मैन थे उनसे बहुत सहयोग नहीं मिला हम लोगों को. तो ये है, वी ट्राई टू इंक्लूड देम एज मच एज पॉसिबल. इनफैक्ट हम जो काम करते हैं, हम जो फील्ड में काम करते हैं, उसमें भी हमें उनका सहयोग मिलता है. लक्ष्मीकांत और हमारे गांव में कुछ लड़के हैं, उनका सहयोग. अभी करेंटली हमारे पास जो कॉमन लैंड जिसपे हम लोग कर रहे हैं, वो एक लड़का ही है, और वो इंटरेस्टेड हुआ हमारे काम को देख करके, और उसने काम को मदद भी करने आता है हम लोगों का. तो इस तरह से भी डेफिनेटली इंक्लूड देम. इनफैक्ट कभी कभी हमारे मीटिंग्स में भी कुछ लड़के आते हैं, तो दैट आल्सो हैपेंस, और हम लोग चाहते हैं कि इवेंचुअली हम उन्हें इंक्लूड करें. तो इसके साथ मेरा भी सवाल जुड़ा है कि जैसे आप लोग सब एक कलेक्टिव की तरह आते हो, मिलते हो, मीटिंग्स करते हो, तो घर का जो आपके परिवार हैं उनका कितना सहयोग मिलता है? क्या वो खुश हैं कि आप ऐसा एक कलेक्टिव के भाग हो, और वो कैसे आपको देखते हैं, और क्या चाहते हैं कि आप इस काम में जो जुड़े हो उनके लिए, या उनकी तरफ से क्या सलाह मिलती है या क्या आइडियाज मिलते हैं? कावर की ना मतलब ना हम जब चिन्हारी जुड़े ना, तब ना थोड़ा बहुत काम करे कि चालू करें ना, थोड़ा बहुत काम करे चालू करें, तब ऐसे लगे कि थोड़ा बहुत गांव के बदलाव होते, तो हमारे मन के मतलब माता पिता लगी कि हाँ हमारे बेटी में थोड़ा ना मतलब आत्मनिर्भर हो थावे, थोड़ा ना खुद से ना मतलब कुछ जिम्मेदारी उठाए बार ना, मतलब अपना जिम्मेदारी ले बार मन है ना अभी. हाँ, अच्छा,
ये था कि आई थिंक ऑल्सो हमारे कुछ डिस्कशंस में भी ये बात है जो वो बोल रही है कि लोगों को आसपास लगने लगा कि ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो इनको बढ़ावा भी काफी देने लगे कि नहीं तुम लोग जाओ मीटिंग में जाया करो, बातें जाओ वहां पर देखो क्या होता है। तो इसमें कुछ इंस्टेंसेस जो हम लोग कल ही एक्चुअली बात कर रहे थे कि हेमा, यहाँ हेमा है तो उसे घर से बहुत निकलने का मन नहीं करता था, उसे मिलता भी नहीं था, बट चिन्हारी जब से शुरू हुआ तब से वो थोड़ा सा बाहर उसका जाने का मन करने लगा और वो यहाँ आने लगी, कुछ ऐसी कुछ चीजें हुई। इनफैक्ट एक सेंस ऑफ आई थिंक एक आत्म परिचय का सेंस हम सबके अंदर आने लगा। मैं आई वुड से कि ये मेरे अंदर भी नहीं था। कई बार ऐसा लगता है कि हम बाहर से आते हैं, हमारे अंदर है तो हम वो ट्रांसफर करना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली मैंने ये काम शुरू किया इन सब के साथ मिल करके, और मैंने शायद ये काम में मैं जुड़, ये तो शायद करते ही रहते, ये नहीं है कि मैं रहूंगी तो ये करेंगे, और बट मैं इस काम के साथ में जुड़ी इसलिए रही क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा, और इनके साथ साथ मेरा भी एक आत्म परिचय बनता गया। तो आई थिंक जब मैं, और मुझे ये शायद एक समय तक समझ नहीं आया था, बट कल जब ये लोग इन बातों को दोहरा रहे थे कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, और हमारा एक अपने बारे में सोच बनती जा रही है, तब इनके कहने से मुझे भी ये बात समझ में आई कि जी बिल्कुल ये शायद सही कह रहे हैं। तो ये जुड़ता है आशीष जी के सवाल से कि स्वर्णिमा बाकी युवतियों से आपने कितना और सीखा और क्या सीखा, और आप जो हैं युवतियां, आप लोगों ने स्वर्णिमा से क्या सीखा? सबसे पहले तो हम लोग दीदी से कॉन्फिडेंस सीखे, मतलब अच्छा। कहीं भी जगह अपनी बात रख सके, और अगर हम सच है तो डरे नहीं, अपनी बात खुल के रखे। लवली। और छत्तीसगढ़ी बोले सीखी वो बोलते हैं कि आई हैव लर्न टू स्पीक इन छत्तीसगढ़ी, तो आई हैव लर्न, बट एक्चुअली मैंने तो बहुत सारी चीजें आई थिंक मैंने चाहे वो छोटी छोटी चीजें हो, खेत में काम करना हो या ऐसी कुछ चीजें हो, इन लोगों ने मुझे सिखाया है। ऑल्सो ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम साथ में केयर का माहौल बनाना शुरू करते हैं, ये सारी चीजों की कोशिश करते हैं, ये कोई ख्याल में मैं कहीं से लेकर के नहीं आई थी। जब हमने बैठना शुरू किया और हमें ये पता चलने लगा कि हमें क्या अच्छा लगता है, तब हमने सोचा कि नहीं हमको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने एक्चुअली ये चीज इनसे सीखी है कि हम कैसे एक प्यार से रह सकते हैं, कैसे हमें इंडिविजुअलिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, कैसे हम एक दूसरे को साथ में लेकर के चलते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं बॉम्बे गई थी, हमारे बीच में एक लड़की थी जानकी के साथ में, एक प्रेजेंटेशन था हम लोग का, और रात में जब हम लोग खाने पहुंचे तो खाना खत्म हो गया था। एक ही प्लेट खाना था, किसी के पास था, उन्होंने हमें बोला कि देखिए हमने किसी के लिए बचाया है, आप चाहते हैं तो आप ले लीजिए। तो मैंने वो प्लेट जानकी को दे दी कि जानकी तुम खा लो, हम देखते हैं हम लोग कहीं से वी मैनेज कुछ कर लेंगे। तो उसने मुझे देखा और उसने बोला तुम नहीं खाओगी तो मैं नहीं खाऊंगी। तो और उस समय मुझे लगा कि हाँ शायद मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अलग हूँ या ऐसा कुछ भी, हम सब शायद एक बराबर ही हैं, और हम सबको इस तरह से जैसे वो मुझे लेकर के चलते हैं। आई थिंक आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम देम, फ्रॉम देयर वर्ल्ड। लवली लवली। तो अब जो इसके साथ सवाल है स्वर्णिमा, दिस इज प्रॉब्ली फॉर यू, that you started in 2016, you've made this group of women, girls in Dhamtari. Have you been able to replicate this in other places with other girls in nearby villages, or have those girls, like people heard about this work in nearby villages and tried to come and ask you to or ask your group, the entire collective, to help them create these things in their own villages? Yeah, actually, Dewey, I would, if it's okay, I would want them to answer it because I have not taken to it. ठीक है, तो मैं हिंदी में पूछूंगी कि सीमा जी हैं हमारे साथ, उन्होंने पूछा है कि ये जो आप लोगों ने आपके गांव में ग्रुप बनाया है चिन्हारी का, और आप लोग सब साथ में मिलके काम करते हो, एक दूसरे की मदद करते हो, तो जो आसपास के जो गांव हैं वहां पे भी लड़कियां हैं आपकी तरह, क्या वो भी
इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ली हैं, इससे प्रोत्साहन हुई हैं कि वो भी अपने गांव में ऐसे कलेक्टिव बनाएं? और क्या ये आपको लगता है कि ऐसे आपके ग्रुप्स और भी गांव में बनने चाहिए? हाँ ऐसा हुआ है। मतलब बोलो बोलो। हमारे गांव के मतलब हमारे गांव के नजदीक में एक बड़ी पानी गांव, वहाँ हमारे बात करे हमारे बात करे से ना लड़की मैंने झट से तैयार हो गई। मतलब हाँ करबो मीटिंग के मतलब इसने ये करे कि करबो हम ऐसे कि हमें मन करे था दीदी। अच्छा। जैसे हम लोग बाड़ी कर रहे थे ना गांव में, तो वो गांव ज्यादा दूर नहीं है, मतलब 2 किलोमीटर के बाद ही है वो गांव। तो ऐसी लड़कियां काम वाम करते हैं, तो लोग स्कूल जाते हैं, तो ऐसे ही पहाड़ के बारे में स्कूल तरफ बात करते हैं, या ऐसे ही रास्ते कभी मतलब बात करते सुने होंगे, या फिर गांव वाले कोई बोले होंगे कि वहाँ लड़कियां एक ग्रुप में रहते हैं, काम करते हैं करके। तो वहाँ की लड़कियों को पहले से ही पता था कि हम लोग बात नहीं की थी, बात करने से पहले वहाँ की लड़कियों को पता था कि इन लोग कुछ करते हैं। फिर उन लोग को पता चला कि इन लोग न्यूज लेटर निकाल रहे हैं, कुछ छपा भी रहे हैं। तो उन लोगों को लगा होगा कि ये लोग क्या करते हैं, क्या ग्रुप है करके। फिर एक दिन हम लोग शायद स्कूल में पूछे, इन लोग स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में पूछे कि क्या चीज है, क्या करते हो, कौन बोलता है करने के लिए, खुद से करते हो करके। तो इन लोग सारा समझाए बताए। तो उन लोग को बोल रहे हैं कि हमारे गाँव में भी इतने सारी लड़कियां हैं, आसपास भी लड़कियां हैं। तो उन लोग ऐसा सोच के स्टार्ट कर रहे थे कि नहीं इन लोग खुद से करते हैं, इन लोग ऐसे ही हम लोग भी बाड़ी लेंगे, सब्जी लगाएंगे, हम लोग भी करेंगे। तो फिर हम लोग समझाए कि बाड़ी और सब्जी तो हमारे काम से, हमारे सोच से निकला है, हम लोग ऐसे ही बाड़ी नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो या हमारे साथ रहना चाहते हो, तो हम आपके गांव आएंगे, बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ो। है तो अच्छी बात है कि हम मतलब खुद से आगे आ रहे हैं। तो यही है कि बाहर जितने भी मतलब देख रहे हैं या गांव जो जान रहे हैं, उन लोग हमारे पास खुद से बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे करके। यहाँ धमतरी जिले में, धमतरी हो या कांकेर हो, छत्तीसगढ़ में धमतरी या कांकेर, यहाँ ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जहाँ लड़कियों का ऐसे मतलब ग्रुप है। मतलब ज्यादातर सुनने में आया है कि महिलाओं का है या फिर कोई जेंट्स लोग का ऐसा कुछ बना है, लेकिन लड़कियों का हम लोगों ने भी नहीं सुना है। तो ये बात तो मुझे भी लगती है कि लड़कियों का ग्रुप हमारे आसपास की लड़कियों को प्रभावित कर रही है। और हमने दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी थोड़ा बहुत काम शुरू किया है। बनौली करके एक गांव है, वहां पर भी अब हमने वहां पर भी मीटिंग शुरू हो गए, वहां पर भी बातचीत शुरू हो गई है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग वी आर थोड़ा हम और गांव में जा रहे हैं, या कुछ गांव हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आशीष जी का एक और सवाल है कि गोंद ज्ञान व बिहारी ज्ञान के जोड़ से निकले, बिहारी नहीं, बाहरी, सॉरी बाहरी ज्ञान में I thought how do you know I am बिहारी? तो अच्छा आशीष जी आप ही बोल दीजिए ये थोड़ा सा। हाँ, मेरा ये पूछना था कि सबसे पूछना है कि आपके गोंड आदिवासी समुदाय में भी बहुत गहरा ज्ञान है, और बाहर से भी, जैसे स्वर्णिमा जैसे अगर लोग आते हैं तो बाहर का भी ज्ञान आता है। इन दोनों के जोड़ के कुछ ऐसे उदाहरण अगर आप देते हैं कि जिससे कि आपकी कुछ दिक्कतें सुलझी हैं या कुछ नई चीज करने को मिला है, ऐसे कुछ अगर उदाहरण हो तो। सवाल एक बार, सॉरी सर एक बार आई विल जस्ट ट्रांसलेट इट वंस। हाँ, लोगों का जो तुहर मन के जैसे जो गोंड मन के वनवासी के तुहर मन के भी अपन ज्ञान हरे, जंगल के हो गए चाहे कुछ हो गए। तब मैं यहाँ बाहर से आया हूँ, ठीक है, तब मैं बाहर से आया हूँ, तब मोर आय से और तुहर मन के ज्ञान दोनों जन साथ में मिला करके तुम कुछ सोच पाओ, चाहे कुछ कर पाओ, कैसे सोच थे? हाँ ये तो हाँ बोलो बोल रही हूँ कुछ। हाँ बोलो। सर देखिए, बाहरी ज्ञान हो या ये गोंड आदिवासी का ज्ञान हो, अगर दो ज्ञान आपस में मिले तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनाता है। कुछ हम उनसे सीखते हैं और वो हमसे सीखते हैं। जैसे हम लोग बाहरी ज्ञान और अपने आदिवासी ज्ञान, वो आदिवासी ज्ञान उन लोग सीखे कि क्या क्या परंपरा है, संस्कृति, और उनसे हम सीखे कि जैसे ये जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में। और सबसे अच्छा उदाहरण ये हमारा पेंटिंग है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग बनाने की सोचे हैं। और हाँ, तो मैं चूंकि
बिहार से हूँ। एक्चुअली ये लोग पेंटिंग करना शुरू किए तो मुझे तो लगता नहीं था कि मैं लाइन वाइन खींच सकती हूँ ज्यादा जीवन में, तो बट उनको देख करके मुझे बहुत इंस्पिरेशन हुआ कि ये कर सकते हैं और इनको इतना, बिकॉज कोविड के समय ये भी था कि मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रहा था हम सभी का, क्योंकि हम मिल नहीं पाते थे, तो बहुत लोग चिड़चिड़े भी हो रहे थे एंड वी डिडंट वांट कि हम घर में झगड़ा करें उसको लेकर के, बिकॉज एनर्जी तो इतनी है, वी आर गोइंग टू यूज इट समवेयर. So they started painting and I was very inspired by them. So I thought perhaps I should also start doing something. So we, so फिर I started, I looked at them and I looked at them and I started painting. And therefore I started painting Madhubani art because I was from Bihar. So like these are like few paintings that I did. Oh wow. ये मैंने इनसे ही एक्चुअली आई गॉट इंस्पायर्ड बाय देम ओनली कि लेट्स, एंड द पेंटिंग वाज नॉट द एंड फॉर मी. वो एक प्रोसेस था कि जैसे ये फील कर रहे हैं मैं भी वैसा फील करना चाहती थी, तो आई स्टार्ट पेंटिंग फॉर दैट एंड देन एक कॉम्बिनेशन धीरे 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 उसका आने लगा कि इन्होंने बोला कि नहीं ये तो एक अलग सा कुछ दिख रहा है, हम लोगों को एक अलग आर्ट फॉर्म दिख रहा है और हमें लग रहा है कि हम कुछ अलग बनाते थे, तो क्या हम उस अंडरस्टैंडिंग से कुछ नया निकाल सकते हैं. Beautiful. Any more questions, आशीष जी? क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल हैं, यदि किसी और के पास सवाल नहीं है तो मैं पूछूं. आप कीजिए. अच्छा, तो अब आप इतने दूर आ गए हैं, आपने थोड़ी बहुत वेजिटेबल फार्मिंग भी सीखी, अब आप लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी देते हैं, ये भी पता चला कि अपने आप को कैसे आत्मनिर्भर बनाया या ऐसे कठिन मौके में कला को लेके एक माध्यम बना दें अपने आप को ठीक रखने के लिए. तो और आप अलग अलग एज ग्रुप उम्र की युवतियां हैं, तो आगे जाके चिन्हारी को आप कहाँ लेके जाना चाहते हैं? चिन्हारी को आप चिन्हारी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? तो एज अ कलेक्टिव आप क्या उम्मीद रखते हो? और थोड़ा बहुत आप हर जो आप हैं यहाँ पे, आपका व्यक्तित्व सपना क्या है? कोई भी शुरू कर सकता है. चलो. चिन्हारी का मतलब ऐसे तो पहले चिन्हारी बनने से पहले तो ऐसे किसी का वो नहीं था कि मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. फिर चिन्हारी ग्रुप जब बन गया तो पहले लड़कियां तो पढ़ते थे, पढ़ने के बाद में पढ़ाई खत्म हुआ नहीं हुआ, फिर शादी का समय आ गया तो उन्हें शादी करके मतलब भेज देते. उनका सपना मतलब वही अधूरा रह जाता था, सपना पूरा हो ही नहीं पाता था. या तो शादी की वजह से छोड़ना पड़ता था, या तो घर में कुछ और हो गया, घर में मतलब खेत जाना हो गया, घर का काम करना हो गया, तो इस वजह से छोड़ देते थे. तो अब जब से चिन्हारी बना तो लड़कियां अब वो थोड़ा सपना देखने भी लग गए, और प्लस सपने देखने के साथ साथ लड़कियों की जिंदगी में ऐसे बहुत सारी परेशानियां, जैसे अभी बात चल रही थी चिन्हारी डोकाल के बारे में. डोकाल में बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी लड़कियों के बीच में बहुत सारी परेशानियां भी है. मतलब एक उदाहरण देना चाहूंगी. मेरे गांव में एक लड़की है कामेश्वरी करके, जो यहाँ नहीं है. वो अपने घर में बहुत शोषित लड़की है, मतलब वो कहीं जाती नहीं थी, प्लस उसके घर में उसके यहाँ तक उसके मम्मी पापा भी उनको मतलब समझते नहीं थे. तो वो मतलब समझते नहीं थे. वो ग्रुप में जब मीटिंग में नहीं आती थी, मतलब बहुत आती थी लेकिन बहुत कम आती थी. जब मीटिंग में आती थी तो अपने ही दुनिया में खोई रहती थी, मतलब कि क्या क्या सोचती रहती थी, प्लस रोती भी रहती थी. और मतलब पूछो तो बताती नहीं थी, कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है. फिर हम लोग कोशिश किए, बात किए उनसे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके, तो वो अपना मतलब थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की. तो मैं यही चाहती हूँ चिन्हारी को लेके कि लड़कियां मतलब जितने भी लड़कियां हैं वो अपने आप में निर्भर हो जाए, मतलब वो समाज के साथ और अपनी जिंदगी के साथ मतलब थोड़ा कोशिश करे कि मतलब आत्मनिर्भर हो जाए. तो चिन्हारी से मेरा यही वो है कि, और हाँ मतलब यही है कि पूरे लड़कियां
एक दूसरे की मदद करे और आगे बढ़े, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट बने, मतलब ये लड़कियों का ग्रुप ही है जो एक दूसरे का मतलब वो बन सकती है, मतलब सपोर्ट बन सकती है। तो मेरा चिन्हारी से आगे आगे तो ले जाना ही चाहते हैं, लेकिन यही सबसे ज्यादा मेन है कि हम एक साथ रहे, संघर्ष के साथ रहे और एक दूसरे का सपोर्ट करें। और सब जो हमारे सबसे छोटे सदस्य हैं, आपका क्या, आप कहाँ चिन्हारी को लेके जाना चाहते हैं? मस्ती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मस्ती के साथ, चलो बहुत अच्छा। ओके जैसा कि हम लोग को कभी लगा नहीं था कि हमारा जीवन, हमारी लाइफ यहाँ तक पहुंच पाएगी। हमें लगता था कि जैसे गांव में हो, पढ़ते तो है, उसके बाद लड़कियों का ज्यादा उम्र नहीं होता, फिर भी शादी कर देते हैं। तो कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग को ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा जहाँ पर हम अपनी बात रख सके, हम अपनी खुद की पहचान बना सके। तो इससे बस यही है कि हम जैसे दीदी बताई कि सब लोग एक सपोर्ट की तरह रहना चाहते हैं। तो ये चिन्हारी मतलब इस ग्रुप के कारण हम बोल सकते हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं कि हाँ हमारे पास सपोर्ट है करके, हम कोई भी चीज मुसीबत हो या दिक्कत हो वो लड़ सकते हैं उससे। तो यही कहना चाहती हूँ कि चिन्हारी ऐसी सपोर्ट के साथ आगे बढ़े। तो आगे अब आप लोग जैसे सब पढ़ाई कर रहे हो, कोई 8th में होगा, कोई 6th में होगा, ऐसे होगा, तो आगे किसी को कोई ऐसे कहीं जाके पढ़ने का शौक है? क्या पढ़ने का शौक है या क्या बनने का शौक है? सब स्वर्णिमा दीदी को देख रहे हैं, सबको स्वर्णिमा दीदी ही बनना है कि कहीं और कुछ और भी बनना है? स्वर्णिमा दीदी ही नहीं बनना है, स्वर्णिमा दीदी के अलावा सबको अलग अलग बनना है। क्या क्या बनना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। वाह, वेरी नाइस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी पढ़ रही, 3rd ईयर में। ओह वाह, कांग्रेचुलेशंस। अपने गांव की पहली हाँ ये बता दो, अपने गांव की पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वाह, बेस्ट ऑफ लक। इसमें ये मैं पूछ सकता हूँ वापस वो गोंडी ज्ञान के में जाने के, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगी, बहुत ही बढ़िया। और शायद फिर गांव से चली जाएंगी तो फिर गांव का क्या होगा? और गांव का मतलब गोंड समाज के लिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के कुछ करना चाहेंगी, कर सकती हैं, ये भी आपके सपनों में है? हाँ मेरे सपनों में है कि मैं गांव के लिए कुछ करूं, मतलब कहीं भी रहे पर कुछ तो सपोर्ट होगा गांव के लिए, गांव की लड़कियों के लिए, अपने ग्रुप के लिए, वो मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती। मतलब जब तक हूँ तब तक उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, मतलब अपने ग्रुप का। सीमा जी पूछ रही हैं कि जंगल से जुड़ाव का क्या होगा यदि आप छोड़ के चले जाएंगे गांव को? तो आप सब जो इतने आत्मनिर्भर बने हो, अपने गांव के लिए इतना सोच रहे हो। छोड़कर तो नहीं जाएंगे, हम वापस आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी जाए जंगल हमारे पास ही रहेगा, क्योंकि अच्छा, जंगल से हम लोग का लगाव इतना है कि हम नहीं छोड़ सकते। चलिए बहुत अच्छा। आप कहीं भी जाए हम जैसे लोगों को सिखाएं हाँ कि जंगल के साथ जुड़ाव कैसे रखना है। नहीं, सच कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भूल गए ना शहरों में। बिल्कुल, बहुत। तो आप तो गांव में भी भूल रहे हो, उसी की कोशिश कर रहे हैं कि जंगल की तरफ जाए, जंगल की तरफ मतलब जंगल के साथ जुड़े। अब गांव में भी ऐसा हो गया है कि सब जंगल को भूल रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि जंगल के साथ जुड़ के रहे, मतलब सबको जोड़ के रखे। तो एक सवाल कि आपके गांव में से कितने लोग बाहर जाते हैं शहर में काम करने के लिए आज के दिन में? अभी तो कोविड हो गया है, लेकिन तो नहीं है, पर सोचते हैं जाने के लिए। जाते भी हैं तो 1 हफ्ते काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। कैसा काम करते हैं? कैसे कैसे काम करते हैं? कोई ड्राइवर हो गया या फिर कोई कहीं फैक्ट्री में काम वाम करते या पढ़ने के लिए जाते, तो वापस आकर गांव में ही। अच्छा अच्छा। और औरतें भी जाती हैं आपकी तरह? महिलाएं भी जाती हैं बाहर काम करने? नहीं, औरतें नहीं जाती।
लड़कियां कुछ पढ़ने लड़कियां और 2 महीने में 3 महीने में घर वापस आती है। तो पढ़ाई 2-3 महीने में कैसे होती है कहीं पे भी? मतलब छुट्टियों में आते हैं तो ऐसे ही अच्छा अच्छा। तो जब अभी कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो क्या बहुत सारे लोग वापस आए गांव के अंदर, कि ऐसा आप गांव में, आपके गांव में कोई प्रभाव नहीं हुआ? गाँव में हुआ। हाँ बोलो, छत्तीसगढ़ी में बोलो। हाँ बंद बोलो। मतलब ना वो मैंने ना शहर गेलिस ना काम करेला, तो जब वो मनीष ना तो हमारे ना स्कूल में बंद कर दे रही थे 14 दिन क्वारंटाइन, हाँ हाँ। तो कितने दिन का? 14 अच्छा 14 दिन ना स्कूल में है, उसके बाद 14 दिन घर में वो बंद करेगी। अच्छा, तो इसलिए नहीं आए वापस? मतलब आई गांव और वापस फिर आ घर गए। आए थे और फिर घर के अंदर रहे? यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पर लोगों को बुला भी लिया गया था कि अभी आ जाओ वापस, नहीं तो बाद में नहीं लेंगे हम लोग। तो जब स्वर्णिमा दीदी वापस आई तो उसको भी 14 दिन क्वारंटाइन किया? 1 महीना। 1 महीना तो हो गया, 1 महीना आपका। ओके। एक मेरा ये सवाल था कि जैसे आप जैसे चिन्हारी के थ्रू इतना सारा बढ़िया काम कर रहे हैं, और जैसे कि हमारी आपका नाम भूल रहा हूँ, सबसे छोटी जो है, बार बार बोल रही है मस्ती, जो भी करना है वो मस्ती से करना है। तो आपका जो स्कूल है, सरकारी स्कूल होगा गांव में, उस स्कूल में किस तरह से आपको लगता है कि जैसे पढ़ाई होती है वो आपके लायक होती है, या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? बोलो। मतलब बोल रहे हैं मतलब पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, मस्ती टाइम नहीं, मतलब वो बोल रहे हैं कि पढ़ाई मतलब वो पूछे थे कि तुम जो पढ़ाई करते हो तुम्हारा बने लगते पढ़ाई, मतलब उमन पढ़ाते तब बनी था इससे पढ़ाते कि नहीं, पढ़ाई की पढ़ाई में तुम्हारा लगता कि कुछ और जुड़ना चाहिए, तैसे टाइप से तुम्हारा लगती है क्या? ऐसे टाइप से लगती? हाँ कोई भी बता सकते हो, उमेश झलक बता सकते हैं। हाँ हाँ उन्हें बता। बने पढ़ाते सर, मेरा मन क्या? अच्छा वो बोल रहे कि अच्छा बने, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, ठीक ठाक पढ़ाते हैं वो लोग। अभी तो स्कूलों में भी ना डिजिटल स्कूल बन गया पूरा। हाँ प्रोजेक्टर सरकारी स्कूलों में भी प्रोजेक्टर कंप्यूटर लग गया है, और फिर टाइम टाइम पे उन लोग को पेंटिंग ड्राइंग सिखाते हैं, प्रेजेंटेशन भी होता है उन लोग का। वाह बढ़िया। वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो कौन सा और विषय अच्छा गोंडी लगता है भाषा, उमेश? सॉरी स्कूल में गोंडी भाषा होती है क्या? बिल्कुल भी? क्या गोंडी भाषा है स्कूल में? अभी तो नहीं, मैं मतलब हाँ पर छत्तीसगढ़ी का कुछ कुछ रहता है, लेकिन मतलब हिंदी एक विषय सब्जेक्ट है जिसमें छत्तीसगढ़ी और कुछ कुछ आदिवासियों का भी कुछ कुछ सब्जेक्ट का लेसन वैसा रहता है। अच्छा। पोयम वगैरह, स्टोरी। या अभी बात चल रही है ना कि स्कूल में कम से कम चौथी पांचवी कक्षा तक तो जो मातृभाषा है, जो आपकी लोकल स्थानीय भाषा है, उसमें सिखाना चाहिए, तो ऐसी बात चल रही है वहाँ? तो खुलने की बात तो है, बट यहाँ पर भी ज्यादातर लोग गोंडी नहीं बोलते हैं। यहाँ पर भी थर्ड जनरेशन तक लोग गोंडी नहीं बोलते हैं। यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां पर फिर भी गोंडी लोग जानते हैं, बोलते हैं, ये है। वो भी ओल्डर जनरेशन है। तो जैसे कि वो बोल भी रही थी कि नया जनरेशन जो है वो बाहर जाना चाहता है, वो कनेक्टेड नहीं हो रहा है। ये भी हमारा एक रीजन था कि अगर हम यूथ के साथ में काम कर सकें तो। Okay. So Swarnima, a few questions like what's the main occupation of this region that you are in? Is it agriculture, agroforestry? I think I would say कि साल जो है वो ऐसा बटा हुआ है चीजों के लिए, लोगों के लिए। तो जब एग्रीकल्चर सीजन होता है तो वो सभी एग्रीकल्चर सीजन में होते हैं। जो गर्मी का टाइम होता है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए टाइम होता है। So it's 2 half of the years. One half is agriculture, one half is from forest produce. Okay, and like this is a women's young girls community that you've set up, but are there some strong women strong SHGs around that work, and do they think that this could be a supporting collective for them?
And Yes. have you tried to work with them in some formats? Yeah, I think I will also translate this question to them. Perhaps they might want to answer. कि तुम लोग के आसपास क्या समूह है, महिला समूह है, और क्या तुम लोग उनके साथ में मिलकर के, या उनको ऐसा लगता है कि तुम लोग कुछ मदद कर रहे हो, या उनको चिन्हारी के बारे में क्या लगता है? मतलब महिला समूह लोग जो हैं, वो लोग चिन्हारी को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या उनको लगता है कि तुम लोग मदद कर रहे हो, या कुछ उनसे तुम लोग से कुछ ये है? हाँ, हमन बताता नहीं मतलब दोनों ही, जैसे महिलाओं का समूह भी है और इधर हमारे गांव में चिन्हारी भी है, तो मतलब वो अपनी जगह है, हम हमारी जगह है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। हम महिलाओं को भी मदद करते हैं, महिलाएं हमारी मदद करती हैं। कैसी मदद करते हो आप? जैसे कि अभी लाख के बारे में मैं बता रही थी ना, तो ये जो लाख हो रहा है ना दुकान में, वो एक तो महिलाओं की मदद से शुरुआत हुई है, क्योंकि गांव में महिलाओं का एक समूह है जो लाख कर रहे हैं, तो हम अभी इनको देख करके और लोग भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि अच्छा। हाँ ठीक है, वो तो चिन्हारी को देख के महिलाएं भी मतलब कर रहे हैं, तो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे महिलाएं देख रेख नहीं करते, बाड़ी में भी मदद महिलाएं देख रेख नहीं करते, तो हम लोग करते हैं। और हमारे जैसे बाड़ी में कुछ बताना हुआ, कुछ करना हुआ, जैसे बीज ऐसे लगाओ, पानी ऐसे डालो, मतलब यहाँ पे घेरा बनाओ, फिर मतलब वो बोलते रहते हैं कि खाद भी अच्छे से डालो तब सब्जी अच्छे होगा, तो ये ऐसे ही मदद करते रहते हैं महिलाएं। मदर्स भी तो एसएसजी मेंबर्स हैं ना, हाँ। तो वही इनके जो मदर्स हुए इन सभी हाँ। लड़कियों के, तो वो लोग एसएचजी में मेंबर्स हैं, तो वो जब इनको काम करते हुए देखती हैं तो उनको भी ये लगता है। तो एसएचजी ग्रुप के मेंबर्स जो है महिलाएं हैं, तो वो काफी इनको मोटिवेट करती हैं। जब हमने पहली बार भी शुरू किया, तो हमको जमीन साफ करने और ये सब में हमें, क्योंकि हम लोगों को कुछ भी नहीं आता था, तो वहां से शुरुआत करने से उन लोगों ने बहुत हम लोगों को मदद किया, बहुत प्रोत्साहन दिया। इनफैक्ट हम एक छोटा सा एडवाइजरी ग्रुप भी हमारा है, कुछ महिलाएं हैं उसमें, कुछ पुरुष हैं उसमें, जो हम लोगों को थोड़ा सिखाते हैं। और ये उनका भी एफर्ट था, जब गांव बंटने लगा था और गांव में प्रॉब्लम्स आने लगी थी, तो उनमें से कुछ महिलाएं थी जो हमें कह रही थी कि तुम अपने ऊपर ये फर्क मत आने दो। तो उससे एक था कि हम लोगों को डर भी था कि क्या अगर हम मेल करने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके का कॉन्सिक्वेंसेस होगा, क्या होगा। बट उनका चूंकि सपोर्ट रहा, उनका ये भी रहा कि नहीं नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, ये कोशिश करो कि तुम लोग डिवाइड ना हो। तो उससे हम लोगों को भी बहुत प्रोत्साहन मिलता रहा। लवली। सुजाता जी का एक सवाल आया है कि आर देयर एनी माइनिंग थ्रेट्स इन योर एरिया? या इस एरिया में कहीं पर ऐसा है जहाँ पर कोई बाहर जाके जमीन लेकर के वहाँ पे माइन खड़ा करना चाहता है, माइन करना चाहता है? खदान नहीं, इस एरिया में तो नहीं है, बट जो आगे हम काम कर रहे हैं अदर डिस्ट्रिक्ट में, कांकेर में, वहां पर ऐसे सवाल हैं। तो या okay. Since you are a young organization, Swarnima, a very operational question here. Where do you get like your funding resources, or who's supporting you to grow this organization or this collective from an external perspective? Or you guys are very self-sufficient and reliant, and you are not really seeking any of that kind of support? एक्चुअली वी आर थिंकिंग अबाउट दिस फॉर सम टाइम नाउ, बट हम में से कोई भी, मतलब यहाँ पर मैं एक एक्शन रिसर्च फेलो हूँ सेंटर फॉर डेवलपमेंट प्रैक्टिस पे, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अदरवाइज जो भी ऑपरेशन कॉस्ट होता है हमारा, वो उस फेलोशिप के थ्रू ही इस्तेमाल होता है। बट ये है कि यहाँ अदरवाइज चिन्हारी में कोई, मतलब इन द ऑर्गेनाइजेशन नोबडी इज पेड। दिस इज वो एक यहाँ हम सेवा कहते हैं। तो जो आदिवासी समाज में जैसे वो फंक्शन करता है, तो आदिवासी समाज में भी कोई पेमेंट सिस्टम नहीं होता है, वो सेवा देने जाते हैं। तो हम एक इंस्पिरेशन है उनके मॉडल से, और हमने उस तरह से ही अपने आप को सेटअप किया है। तो अभी हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। वी ट्राई टू somehow manage, so that's how we function. Yeah. Lovely. There is for now there is no funding per se or anything. Yeah. Okay, great.
I think we are almost done with a lot of the questions. To the Can I just ask listeners, one final one? yes, please. Yeah, I'm just. ये था कि आप में से सब जो है थोड़ा उम्र जब बड़ी हो जाएगी तो युवतियां नहीं रहेंगी, तो चिन्हारी का क्या होगा फिर? अभी तो और छोटे छोटे लोग आ रहे हैं, मतलब हम लोग जब कहते हैं ना, तो छोटे छोटे हमारी जो बहन होती हैं वो लोग भी तुम लोग कहाँ जा रहे हो दीदी करके हमारे साथ आती है, तो शायद वो लोग भी हमारे साथ हमारे काम को देखकर वो जुड़ने लगेगी, अगर बड़े बार मतलब बड़े बड़े होने लगे पर तो नई नई पीढ़ियां जुड़ती रहेंगी। हाँ, तो ये युवतियां मतलब युवतियां हैं, युवतियां रहेंगी और शायद युवतियों के अलावा निकलते जाएंगे तो नई युवतियां आती रहेंगी। तो चिन्हारी में ऐसा तो कभी नहीं होगा कि युवतियां नहीं रहेंगी, युवतियां रहेंगी। जब बड़े हो जाएंगे, अगर शादी हो जाएगी तब भी हम कोई भी तरीके से हम चिन्हारी की मदद करेंगे। तो हम यही है कि चिन्हारी को नहीं छोड़ना चाहिए। शादी भी तो होती जिले में है ना, अगर चिन्हारी अगर विस्तार कर रहा है तो वैसे भी जुड़े रहेंगे। तो क्या आप लोग जहाँ पे भी आप अब शादी आपकी होगी तो हो सकता है कि आप धामतारी में ना हो, आप कहीं किसी और गांव चले जाओ या शहर चले जाओ, तो क्या आप लोग में से वहां पे फिर एक और चिन्हारी शुरू करने की आशा करोगे? जोड़ने की कोशिश करेंगे, वहां भी चिन्हारी बनाएंगे। क्या? हाँ, कविता बोल रही है हमारे बच्चे भी चिन्हारी में जुड़ेंगे। अरे वाह, दैट्स वेरी गुड। एक्चुअली ये हमारे लिए एक सवाल अभी कॉन्स्टेंटली रह रहा है, क्योंकि हमारी ये है कि शायद हो सकता है आने वाले समय में हम किस तरह से वी विल जो मेंबर्स हमारे यहाँ से निकलेंगे वो दे बी पार्ट ऑफ, क्योंकि वो जुड़े रहना चाहते हैं, तो वो क्या, तो हम लोग इस चीज पर ऐसी प्लानिंग करते रहते हैं कि लेट्स स्प्रेड इट लाइक दैट, कि हम अभी 4 जन है 5 जन है तो हम शायद बहुत सारे गांव में नहीं जा सकते, लेकिन जैसे जैसे हम जाते जाएंगे somebody will get married, so we will perhaps keep opening those open learning center kind of Chinhari spaces there also. So Swarnima, a question to you as a development fellow, and since you're still connected to the university, where do you see this entire project, and how do you see it for yourself? I think Juji, one thing is that और ये एक मेरी लर्निंग रही है यहाँ से कि थियोरी और प्रैक्टिस जब तक साथ में नहीं चलता है तब तक वो बहुत पैराडिग्मेटिक बनते जाते हैं। तो आई एम yes related to the university, I keep writing, I keep publishing also, but जो nature of my writing है आज, because I do this work with them, is very different, और शायद अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो उसका नेचर बहुत ज्यादा बदल जाएगा। So in any format, one may be that I go somewhere, they are of course going to continue with it, but in any format I want to be here. What and how, we are still thinking about it. We are certain that we want to take it to other villages, we want to take it to other districts, to other states also. Perhaps tomorrow day, like some year, we become a group, that a name of a group that is like existent in most states or something like that. But we want to, yes, keep essence intact, and I certainly want to remain joined to this group, because I think I'm very greedy in terms of what I'm getting, in terms of the kind of knowledge and the kind of learnings that I'm getting. Beautiful, lovely. तो अभी हमारे पास कुछ 10-15 मिनट है, कुछ लास्ट आप लोग में से कोई हमारे साथ कुछ और बोलना चाहता है, बताना चाहता है? नहीं तो फिर मैं जो ऑडियंस है उनसे भी पूछूंगी, उनको कुछ आपको बोलना है तो लास्ट अब बोलेंगे और फिर से मिलेंगे कभी जल्दी। I think एक like just 1 minute I'll take। हमारे साथ आज प्रवीणा भी है। हाँ, प्रवीणा
is also from Ambedkar and वो यहाँ पर है, यहाँ पर कांकेर में रहती हैं वो, कांकेर डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं और आज वो हमें support, she's come here to help us, support us because of course we were all a little anxious and प्रवीणा, सौरभ, अमित, इन लोगों का हमें बहुत हेल्प रहा है, हमें हमारे न्यूज़लेटर्स में इनका बहुत हेल्प रहा है, तो so we would also thank to them and thanks to her to come and support us today. And I think I can see Saurabh Chaudhary and an Amit on yes, this. Yes, they are. So maybe I'd like the external support members that have been mentioned to switch on their cameras and share a little bit about their experience. Anubhav, Vijita, Arpit, Amit, Saurabh, please. Please. इसमें जूही एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि क्योंकि इन लोगों के साथ मेरे 1-2 इंटरेक्शंस हुए हैं, ये जो स्कूल फॉर डेवलपमेंट प्रैक्टिस जो है अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, तो मुझे लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी में कुछ बदलाव लाना है तो इट नीड्स टू बी इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि जिस तरह से ये लोग व्हेन दे लुक एट डेवलपमेंट क्रिटिकली एंड आल्सो हाउ, सॉरी हिंदी में बोलूँगा, विकास को क्रिटिकली देखना और उसके साथ में जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से मास्टर्स से लेके एमफिल पीएचडी तक जो है गांव में रह के किस तरह से अपनी स्टडीज भी कर सकते हैं, लेकिन गांव की जिंदगी में किस तरह से जुड़ सकते हैं, मुझे लगता है स्वर्णिमा ने वो किया और फिर तय किया कि मैं फिर गांव में ही रह जाऊंगी, और कई ऐसे लोग और भी हैं। तो प्रोफेसर अनूप धर को भी मुझे लगता है कि एक थैंक्स देना होगा, आज शायद नहीं है हमारे साथ, लेकिन ये एक बहुत मतलब अगर यूनिवर्सिटी के माहौल में कुछ अलग तरीके से करना है तो दिस इज वन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच आशीष। तो मुझे लग रहा है अमित आपका कैमरा भी ऑन है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज। Pran is also there. Yes, would like to hear a little bit from all of you supporters as well. कोई भी जो whoever wants to start. जी, मैं इमरान, मैं स्वर्णिमा और प्रवीणा के साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट प्रैक्टिस में काम करता हूँ और चिन्हारी को मैं छत्तीसगढ़ में इस साल से जानना शुरू किया हूँ। मैं उनके साथ जाके 2 बार मिला, उसके बाद हमें दोबारा मिलना था और लॉकडाउन शुरू हो गया तो हम जा नहीं पाए, बट बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कोशिश है इनकी वो आई थिंक मुझे बहुत सिखाती है। मैं जब इनके पास गया था, मिला मैं इन लोगों से, तो 2-3 मीटिंग्स हुई है मेरी और मुझे बहुत कुछ एज एन एकेडमिशियन, एज अ टीचर सिखाती हैं और कोशिश यही रहती है कि वो उस रिलेशन को जो कि सपोजिटली होता है हायरार्किकल की टीचर है और स्टूडेंट है, उसको कैसे बदला जाए। इनके साथ वो weight of being a teacher and knowing things नहीं होता, so that's my learning from them. और lovely, thank you so much. Thank you so much. Anyone else wants to go? हाँ अमित जी बोलिए। नमस्कार सभी को, मैं अमित और मैं अभी डेवलपमेंट प्रैक्टिस का एक स्कॉलर हूँ। मेरा पहला इमर्शन हो चुका है। मैं डोकान गांव में ही था इन लड़कियों के साथ। कुछ लड़कियां हैं जो जानती हैं मुझे और कुछ मारदापोटी गांव से हैं जो उनसे मिला हूँ लेकिन शायद न जानती। तो मेरा पहला इमर्शन रहा था। उस दौरान जब मैं इनसे बात करता था, थोड़ा बहुत जो काम करता था, एक अलग तरीके की एनर्जी डालता था, सोचने को मजबूर करता था कि हम कितने वेरिएशंस और कितने अलग अलग लेवल पे यूथ के साथ और बच्चों के साथ काम कर सकते हैं और बच्चों से भी क्या क्या सीख सकते हैं। और एक तरीके का इंस्पिरेशन मेरे को इन बच्चियों से, इन लड़कियों से आ रहा है कि मैं अपने काम को, जो मैं अभी अपना काम करने जा रहा हूँ, अभी कोरोना के चक्कर में थोड़ा मैं फंस गया हूँ और मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ अपने काम को, तो एक तरीके का इंस्पिरेशन भी
इस महामारी के दौरान भी काम कर रही हैं, अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। तो मेरे को एक इंस्पिरेशन मिल रहा है कि मेरे को किस तरीके से अपने काम को देखना चाहिए। तो फॉर मी दे आर लाइक अ काइंड ऑफ स्पिरिट, जो बोलते हैं ना, अंधेरे में एक दिए की रोशनी की तरह दिखाया गई है। लाइक दैट। या थैंक यू। Thank you so much. Or if there's anyone else who wants to add on about their experience with Chinhari, or anyone else from the group who wants to say something to the group that's here and the young women. Sorry. Hello. Yes, Anubha. Yeah. One second. This thing is not working. Yeah. Hi. Hi. जितने एंग्शियस ये लड़कियां उतनी एंग्शियस मैं भी हूँ एक्चुअली. आई एम वेरी स्कैर्ड टुडे. सो या माय नेम इज अनुभा एंड आई एम हियर इन छत्तीसगढ़. मैं भी छत्तीसगढ़ में ही हूँ और मेरा इमर्शन स्वर्णिमा के साथ शुरू हुआ था. मैं और स्वर्णिमा एक साथ एमफिल डेफप्रैक ज्वाइन किए थे. मेरा जो गांव रहा था वो डोकाल है, जहाँ की कुछ लड़कियां यहाँ पे अभी जुड़ी हुई हैं. तो साथ में ही हम लोगों ने मतलब बहुत तो क्या ही हेल्प तो नहीं, हेल्प इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड. पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा है हेल्प नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज इन्होंने बहुत मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए. एंड चिन्हारी इज समथिंग, यहाँ पर ये चिन्हारी इन लड़कियों से ही बना है. इसमें जितना स्वर्णिमा का योगदान रहा है, मुझे लगता है उसमें लड़कियों का बहुत बहुत ज्यादा योगदान रहा है. और लड़कियों का एक अपना इंटरेस्ट या उनका एक अपना जो सोच रहा है वो अभी तक हम लोगों को भी बार बार पुश करता है कि हम लोग कुछ किसी भी तरह से, टाइम हो नहीं हो. मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ, मैं इसी डिस्ट्रिक्ट में हूँ, लेकिन मैं उनसे दूर हूँ. तो ये भी एक बहुत तकलीफ की बात रहती है मेरे लिए. मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, बट मेरी कोशिश हमेशा यही है कि किसी भी तरह से इनसे जुड़ी रहूं, किसी भी फॉर्म में. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा फिजिकल हो भी नहीं पाती हूँ कि फिजिकली प्रेजेंट हो पाऊं. बट बहुत ये जो मजा वाली बात अभी बोल रहे थे ये वो है. हम लोग कोशिश करते हैं कि चीजें अगर एंजॉय नहीं करेंगे, वो सारी चीजें जो ये कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आई थिंक, अगर कंजर्वेशन से लेकर के इवन विद द फैक्ट कि हम जमीन के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम किस बीज के बारे में सोच रहे हैं, हम कैसा फूड प्लेट चाहते हैं. many aspects they are trying to incorporate in their work, which is amazing. Like they just inspire me. It's just that. So yeah, that's it for Chinhari from my side. I just love these girls. Love you girls. Brilliant. Love you. Miss you. Thank you so much, Anubha. Yeah. Thank you so much. Thanks. Any last words, or shall we wrap up, Ashish? No, I think एक बहुत बढ़िया इंटरेक्शन अगर हम लोग कर सकते हैं तो मुंसियारी में जो जंगली स्कूल है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत छोटे से बड़े केवल लड़कियां नहीं, लड़कियां दोनों हैं, और आपका चिन्हारी है. इन दोनों का अगर हम लोग एक फिजिकली कभी होगा तो बढ़िया होगा, लेकिन ऑनलाइन कम से कम डेफिनेटली वी शुड ट्राई दैट. मे बी आवर नेक्स्ट वार्ता और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. या सो बहुत कुछ मिला आप लोगों से सीखने के लिए, और मजा भी बहुत आया. एक्चुअली ये इसमें भी मजा आया आपकी बातें सुन के. अब मुझे लग रहा है कि मैं अगली ट्रेन लेके मैं भी छत्तीसगढ़ आ जाऊं. We would please invite you all. Please come. So hopefully देखते हैं कब कैसे हम मिल पाएं फिजिकली एज वेल. लेकिन मैं एक चीज तो बोल सकती हूँ, जो भी यहाँ आया है आज और आपकी बातें सुना है और आपको जाना है, आपने ऑलरेडी एक चिन्ह उनके दिल में तो छोड़ दिया है.
उसके आगे भी छोड़ते रहिएगा एंड गुड लक। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन भी बनोगे और बन सकते हो। तो मजे करते रहो और ऐसे ही खुशी खुशी और लोगों पे भी खुशियां बांटते रहो और बहुत सारी बाड़ियां बनाओ और बहुत सारा सब्जी उगाओ और जंगल अच्छा और बनाओ। और आपसे प्रेरित होके मैंने अभी आपको सुनते सुनते वाओ मेरा छोटा सा, हाँ, तो वो लाख का कीड़ा है। चिन्हारी की युवतियों की तरह उड़ान। अच्छा, okay, beautiful. Thank you so much. Thank you for the rest of you for joining in. The lovely young supporters of Chinhari, please continue to give them all the support you can. We're also all here. And yes, I think the university needs to do much more of this kind of work, and we'll try and reach out to them separately as well. So enjoy the rest of your Saturday. शनिवार है, कल संडे है, आराम करिएगा, मजे करिएगा। I want to say one thing. Yes, please. I mean, yeah. So ये लोग जो लाह की चीजें इनकी तो नॉलेज लिमिटेड होगी। अगर इस लाह से और भी चीजें अगर बने and somebody could give them a workshop, then that would be really awesome. Because लाह से तो बहुत चीजें बनती हैं। उससे हैंडीक्राफ्ट की चीजें बन सकती हैं। तो अगर आप लोग if you have the resources, अगर इस के बारे में हम लोग जान सके कि आखिर यहाँ इसी गांव में पहले इस लाह से और क्या-क्या चीजें बनती थी, और अगर उन्हीं चीजों को रिवाइव किया जाए तो मैं समझती हूँ वो अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर इन लोगों को इनके जंगल से और इनकी जमीन से जोड़ के रखना है, तो जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं को वहाँ एक अच्छे स्तर पे इस्तेमाल करके, और if a small workshop that could make them independent or financially independent, not only making, अगर हम उस चीज को बनाते हैं तो उसको बेचने का भी माध्यम अगर या उसके बारे में इन लोगों को समझाया जाए या सिखाया जाए या सुविधा उपलब्ध कराई जाए, बिल्कुल, कि you can sell it on Amazon or you can maybe अपने गांव में ही बेच सकते हो, छोटे सा दिया ही है, या क्योंकि लाह तो पहले काम आता था सील करने में, like it was used in the post office, which probably is no more used. But अगर हम लोग या कोई रिसर्च वर्कशॉप जो इनके जो उस गांव में उपज है या जो भी फल फूल सब्जी, so if we, I mean through Zoom or whatever, if they could be guided from the right people, तो वो मदद कर सकता है इन लोगों को। डेफिनेटली। और इस पे मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी स्वर्णिमा, हो सकता है आप जानते हो, लेकिन विकल्प संगम के माध्यम से ही एक और प्रक्रिया शुरू हुई है which we are calling विकल्प सूत्रा, और ये mainly and for everybody else also who's on this call, it's basically a platform that we're trying to create which is looking at collective action. तो जो आप बोल रही हैं कि इनको लाख के बारे में वर्कशॉप दें या make them understand how to use their vegetable produce for selling and for some format of economic gain, तो हम चाहेंगे कि आप जैसे चिन्हारी है, यदि आपकी कोई नीड्स हो या चैलेंजेस हो जिसके लिए आपको सपोर्ट या फैसिलिटेशन चाहिए, if you write in to us, then we will be happy to try and connect you. क्योंकि विकल्प सूत्रा का मेन मकसद यही है कि यदि कोई ऐसा ग्रुप हो जिसके पास एक मुद्दा हो और वो चाह रहे हैं कि उनको एक नेटवर्क मिले, एक ग्रुप मिले जो इन मुद्दों पे काम कर सके उनके साथ वॉलंटरी बेसिस पे,
या कलेक्टिव पार्टनरशिप बेसिस पे, तो वो जो कनेक्ट है, वो जो सूत्र है, वो हम बांधने के लिए कोशिश कर सकते हैं. तो जो आप बोल रही हैं, livelihoods. Yeah, and it is it could give focused them on their livelihood dignified, also. and the whole Vikalp Sutra process is focused on dignified livelihoods. So, and the idea being that trying to see how we could create those livelihoods within the spaces, the local spaces and the native spaces of the people, and not have to get them to go out too much. Concentrating a lot on what is available in terms of their natural resources there. So if that is something that is a part of the purview and your next steps, Chinhari's next steps, please don't hesitate to reach out to us and we can try and connect you to. Because if these girls are so dedicated, and if you professionally train them, I'm sure they will pick up definitely faster than people come. Absolutely. We'll definitely take that into account, and thank you so much for bringing that in. Thank you. Got to learn a lot. फिर भी बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम. हाँ, अब पहले कि आपके मम्मी पापा आ जाएं घर ले जाने के लिए, हम बाय बोलते हैं दूसरे को. और चलो, ऑल द बेस्ट. सब्जियां खाइए और हमें भी खिलाइए. Thank you. Bye. Bye. Bye.